मैदाने जंग से आ रही तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का सिलसिला अभी भी जारी है और ऐसे में ज़ेलेंस्की की क्या रणनीति रहने वाली है, इसका खुलासा आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ज़ेलेंस्की के सांसद ही करेंगे। यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त सुमेरा के साथ मौजूद हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी हाँ समीर, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ज़ेलेंस्की का अगला कदम क्या होगा, यूक्रेन क्या करने वाला है। कल ट्रंप की अहम बातचीत भी हुई है, तो हम इसी से जुड़ी सारी जानकारी बताएंगे। रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी हर बड़ी खबर बताने वाले हैं हम आपको और बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। टीवी 9 स्टूडियो में यूक्रेन वॉर जोन का फाइटर मौजूद है। टीवी 9 स्टूडियो में ज़ेलेंस्की की सारी रणनीति जानने वाला व्यक्ति मौजूद है। ज़ेलेंस्की का राइट हैंड टीवी 9 स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। टीवी 9 स्टूडियो में स्वितलाव युराश हमारे साथ मौजूद हैं और युराश से हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्योंकि कल भी अहम बातचीत हुई है ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच। उससे पहले UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ट्रंप और पुतिन के बीच अहम बातचीत हुई है। इस युद्ध के फ्रंट पर अब आगे क्या होने वाला है, ज़ेलेंस्की की क्या होगी अगली रणनीति, ये हर कोई जानना चाहता है। युराश से हम बात करेंगे इसी पर। युराश, everybody right now wants to know that what would be the next step of that Zelensky would take. Zelensky and President Trump had a conversation of 1 hour yesterday, but after that, today, the biggest news that we have is that there were 30 strikes that happened over different cities in Ukraine. It shows very clearly what Russia actually is, and nobody wants peace more than Ukrainians. We have desired peace through it all. The fact is that we want peace that will last. We want peace that provides for security and prosperity for our people. So the point is that Russia is not interested in that. It's showing that, but every airstrike, every attack, every death, every murder, all the destruction is causing all around Ukraine. We are hoping and we are building the coalition with all these other countries to try and ask for the peace that lasts. But yesterday, in the conversation that Trump had with Zelensky, Zelensky has agreed that he would not strike on the energy infrastructure, on roads, on ports. So that agreement has, how do you see that agreement coming? So is this a move towards the ceasefire? Of course, it's a step in that direction. It's very important to understand that the fact that Russia is attacking all infrastructure around Ukraine throughout this war, civilian, military, all kinds of it. So the point is, all these steps are very important here. But again, it should last. There should be more on the table than just a piece of paper. Russia's notorious for breaking these agreements. So what we need to do and talk about is what other steps there will be that guarantees this lasts. We also have Manish Jha with us. He is in Zaporizhzhia right now. मनीष, आप भी सवाल ले सकते हैं अगर आप युराश से सवाल लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ युराश मौजूद है और युराश का ये कहना है, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि दरअसल वो क्या बताना चाहते हैं। तो युराश का ये कहना है कि यूक्रेन गंभीर है, शांति चाहता है यूक्रेन, लेकिन गारंटी भी चाहता है कि रूस के तरफ से जो हमले होंगे और रूस की जो रणनीति है उस पर उन्हें गारंटी मिले, लेकिन वो गारंटी अभी तक उन्हें मिल नहीं रही है कहीं से। युराश, यूक्रेन हैज ऑलवेज बीन डिमांडिंग दैट दे शुड गेट गारंटी against whatever Russia would plan after the ceasefire comes into action. But that guarantee has not been given yet. Yet Trump wants that you should go ahead with the ceasefire, you should step towards it without those guarantees. So would Zelensky go ahead with the ceasefire plan without the guarantees that Ukraine wants? We have the offers of all kinds of support from different partners around the world and the engagement, especially of India, in this discussion. So we have the understanding that the world is watching, world is taking part in the discussion about the peace in Europe that the Ukraine situation needs. जी मनीष, आप सवाल लेना चाहते हैं? मनीष, आप सवाल लें उससे पहले मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि देखिए, एक तरफ पुतिन और ट्रंप की बात होती है और फिर ट्रंप की ज़ेलेंस्की से बात हुई और उसमें ज़ेलेंस्की ने कई अहम बातें कही हैं, जिसमें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए जाएंगे, ये बात मानी गई है, लेकिन उसके बावजूद आज 30 हमले हुए हैं यूक्रेन पर। बिल्कुल सुमेरा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि टीवी 9 की ग्लोबल कवरेज देखिए कि यूक्रेन के सांसद इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है और मैं ज़ेपोरिज़्ज़िया में मौजूद हूं और यहां पर मैं अपनी आंखों देखी देख रहा हूं कि किस तरीके से इस युद्ध क्षेत्र का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ेपोरिज़्ज़िया जो कि यूक्रेन का एक बड़ा प्रांत होता था,
उसका 80% से ज़्यादा हिस्सा आज की तारीख में रूस के नियंत्रण में है, जबकि 20% हिस्से को बचाने के लिए यूक्रेन जद्दोजहद कर रहा है। हमारे स्टूडियो में बैठे सांसद जो खुद युद्ध के में शामिल हो चुके हैं, मैं उनकी भावना का भी सम्मान करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज परिणाम उनके हक में नहीं है। 4 राज्य वो गंवा चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका सबसे बड़ा सहयोगी है अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप अब वही करेंगे जो उनकी इच्छा होगी, ना कि यूक्रेन की इच्छा होगी। तो मेरा सवाल उनसे यही है कि व्हाट आर द ऑप्शंस यूक्रेन हैज़ नाउ, एंड देन द सेकंड थिंग इज what Ukraine will do if Trump will not agree with their terms, because President Putin is not going to listen him. President Putin is not going to consider Ukraine's condition. So then what Ukraine or President Zelensky will do? ये सवाल लेंगे युवराज से कि क्योंकि गारंटी नहीं मिलेगी और पुतिन जो चाहते हैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, तो फिर क्या विकल्प हैं जेलेंस्की के पास और यूक्रेन के पास?